Hello students, welcome to Skill IQ Education. Today we will do test chapter 8 ICSE water. What do you mean by water? This I have written on the board. Water means H2O, means two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. Oxygen. Oh, hydrogen. Water is there in three types of form: solid, liquid and gas. It is present in three forms: solid like in ice, and liquid in water, and in gas vapors. Then it comes sources of water. How many sources of water are there? First is rainwater. Rainwater is also harmful to us and also useful to us. Because how it is harmful? When a rain comes, some acids dissolved in it, and it becomes acid rain. Acid rain. Acid rain. What is acid rain? The some acid which are dissolved in the rainwater is known as acid rain. And how it is useful in agricultural work. Agricultural works. And second, it comes surface water. Surface water like sea. In sea, surface water is present. Sea water is not good for our health and agricultural works, because it is saline and many salts are dissolved in it, and many salts. फिर आता है ग्राउंड वाटर. Ground Rainwater is the main source of groundwater. When a rain comes, soil absorbs the water and it goes down of the water. The level means it is water downside, and there is a water pump from which the water comes. It it comes the level of water under this water means H2O. This water is known as water table. What? Water table. The level of water means present downside the earth is known as water table. फिर है physical properties of water. Physical properties of water. What are physical properties? Pure water is a good solvent. Pure H2O means water is a good solvent. What is solvent? Component of solution present in excess amount is known as a solvent. Solvent. Means we can say it other definition also. For example, water is dissolvent solution, and other thing like sugar we can take it is a solute. Sugar plus H2O, it becomes a solution. And what is a solution? It is a homogeneous mixture of two or more substances. Homogeneous mixture, how for example sugar and water. If we will dissolve these both, they will dissolve and form a new solution. New solution. Because they both are dissolved completely, this is known as homogeneous mixture. Then it comes second point is of physical properties. It does not conduct electricity. It does not conduct electricity. For example, pure water does not conduct electricity. Some acids are dissolved in it, then have electric current form.
electric current form. Then third point is it is tasteless. It is tasteless means no taste is there in water. It is also colorless. It is transparent. We can see it means it is transparent. We can उसके आर पार देख सकते हैं. और it is odorless. OUDRLESS. Odorless. Next property is pure water boils at 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius and it freezes at 0 degrees Celsius. And next point is it exists at solid, liquid and gas in three forms. And the last point is its density. Its density is equal to 1 gram centimeter raised to power minus 3 or 1000 kilogram meter minus 3. Then next comes solubility of gases in water and its importance. Solubility of gases in water. Solubility of gases, for example, in water oxygen is present. It is a gas. It is a gas present in water. And it dissolves H carbon plus oxygen plus hydrogen. Forms H2O. Carbon, if you will say that carbon is not present in it, but it's present in very low amount. 0.001 atoms are present. फिर हमारा सॉल्यूशन पहले भी बताया था. It is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture of two substances which can be changed at a certain amount. फिर आती है characteristics of a solution. A solution is very clear and transparent. For example, lemon juice. Lemon juice. We will dissolve it. We cannot see the particles of lemon because it is completely dissolved. We can see only water because it is transparent. And the second one characteristics is a solution is a mixture of a solution is a mixture of two substances. Which are those two substances? Solute and solvent. SOLUTE, solute and solvent. What is solute? Component of solution present in excess, present in less amount. For example, sugar. And solvent present in excess amount. Component of solution present in excess amount. For example, water. Sugar, if we will dissolve sugar and water. Sugar and water plus H2O. We will see that we will give less sugar, like 100 gram sugar we will take. Sugar. Water we will take more. This means this is solvent and this is solute. फिर अगला आता है a solution can be separated into solvent and solute by filtration. Filtration एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर सकते हैं. शुगर और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं. Filtration.
नेक्स्ट पॉइंट है a solute and solvent can be in any physical state. जो solute और solvent वो फिजिकल स्टेट में किसी भी फिजिकल स्टेट में हो सकते हैं, जैसे कि अब हमने लिया था शुगर, इट कैन बी सोल्ट, एनी सोल्ट, हाइड्रेटेड सोल्ट एक्सेट्रा, एंड सोलवेंट एनी लाइक ऑयल, मिल्क, एनीथिंग कैन इट कैन बी देयर। फिर आते हैं हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन ऑन टू, इट इज बेस्ड ऑन टू पार्ट्स। In one part there are three types of solution. First is unsaturated. Unsaturated solution. What is unsaturated solution? Unsaturated is a solution in which more solute can be dissolved at a given temperature. Means if we will take a temperature of 20 degrees Celsius and पानी में हमने चीनी घोली, means if we dissolve in water at sugar at 20 degrees Celsius of temperature, it can be dissolved. And then comes saturated solution. Saturated solution. What is saturated solution? More amount cannot be dissolved at a same temperature. Means पहले हमने घोल ली 200 ग्राम शुगर, घोल ली, वो घुल गई उसमें, और फिर हम फिर से 200 ग्राम और घोलेंगे तो वह नहीं घुल। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर 20 से 50 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड। एंड द लास्ट वन कम्स सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड? हमने 400 ग्राम शुगर होगी, 200 और घोलेंगे 200 ग्राम, उसका टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस कर लिया, वो घुल जाएगी, टोटल होगी 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री ग्राम शुगर हमने उसमें डिजोल्व। और जब हम उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, लाइक इसमें वो डिजोल्व शुगर एंड वाटर, इसको ठंडा होने के लिए सरफेस पे रखेंगे, तो ये जो बाहर उसके पार्टिकल्स हैं वाटर के कुछ, वो ऐसे जम जाएंगे, क्योंकि हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का वो किया है, उसको गर्म करके टेम्परेचर से हमने उसको ज़्यादा गर्म किया और उसमें डिजोल्व किया है। अब वो फिर से जमने लगेगा, और जितना उसमें डिजोल्व हुआ है वो हो जाएगा, और आधा वाला जो सा एक्स्ट्रा है वैसे सॉलिड की फॉर्म में वापस बाहर जम जाए। जैसे कि रसगुल्ला होता है, उसमें वो चाशनी होती है, उसमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यूज किया जाता है, क्योंकि फिर वो जब रसगुल्ले का चाशनी तैयार हो जाती है तो वो बाद में उसके बाद में सॉलिड जमने लग जाता है। ये 3 पॉइंट्स दीज आर बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट। जो ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड थे, ये थे बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट। अब सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। मीन्स सोल्यूट पार्टिकल्स हाउ मच बिग स्मॉल आर देयर। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन है? जैसे कि हम सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर देंगे, उसका एक मिक्सचर बना देंगे, तो हम उन्हें अपनी नेक्ड आइज या उससे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते उसके पार्टिकल्स को, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेमन जूस, और salt solution। Salt solution, these are mixed very clearly that we cannot see their particles, from naked eyes or by microscope. This is our first point. And second point comes suspension. What is suspension? In this process,
solute particles are very large. They can be seen by our naked eyes also. मतलब नंगी आंखों से भी हम उन्हें देख सकते हैं. Naked eyes. For example, sand and water mixture. Sand and water mixture. और ये था सेकंड पॉइंट. और थर्ड आता है कोलोडियल सॉल्यूशन. थर्ड आता है कोलोडियल सॉल्यूशन. Colloidal. What is colloidal? In these particles of solute never dissolve. ना तो वो घुलेंगे और nor settle down. मतलब वो ना तो उसके पार्टिकल्स घुलेंगे और ना वो नीचे बैठेंगे. फॉर एग्जाम्पल एग इन वाटर. अगर हम उसको वाटर में डाल लेंगे तो वो नीचे ना तो बैठेगा और ना उसमें उसका सॉल्यूशन घुलेगा. और स्टार्च इन वाटर भी हम कह सकते हैं. फिर आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. Water of crystallization. H2O. Crystals. What do you mean by crystals? Small particles of a broken substance. जैसे कि हम एक चीनी होती है उसको एक बड़ा पार्टिकल होता है उसका. मतलब जैसे ये एक पार्टिकल और उसके तोड़ के उसके छोटे पार्टिकल बनाए जाते हैं. शुगर क्यूब बनाए जाते हैं. मीन्स दीज आर क्रिस्टल्स ऑफ शुगर. फिर कहेंगे कि H2O मीन्स वाटर के क्रिस्टल्स कैसे होते हैं. वो वाटर के क्रिस्टल्स ऐसे नहीं होते. वो होते हैं कुछ पॉइंट्स में. फर्स्ट पॉइंट है हमारा अगर हम कंपाउंड्स और मिक्सचर. कंपाउंड क्या, उसमें जो वाटर में H2O में जो सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सोल्ट्स. और मिक्सचर क्या है, जैसे कि हमने शुगर और वाटर डिसॉल्व किया तो शुगर के पार्टिकल्स, इनके क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में. तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सेकंड पॉइंट इट कम्स कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोल्ट्स के पार्टिकल्स हम वाटर में इजीली देख सकते हैं. जैसे कि सी वाटर है. हम उसको अगर निकाल लेंगे, हम सी में से निकाल लेंगे तो हमें वो वाटर सिर्फ पूरा सफेद दिखेगा, मीन्स वाइट. जो वाइट दिखा वाटर तो लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है. वो वाइट क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें मैनी ऑफ द सोल्ट्स आर प्रेजेंट. सोल्ट्स आर प्रेजेंट इन
in excess amount. That's why it looks like white. फिर आगे हमारे आता है hydrated salts. What are hydrated salts? What are hydrated salts? इन salts के भी कुछ कंपाउंड होते हैं. salts कई तरह के salts होते हैं. ये वाले salt ने जो हम खाने पीने में यूज करते हैं वो अलग salt होते हैं जो कि कुछ केमिकल प्रोसेसेस में यूज होते हैं. जो ये सोल्स होते हैं इनमें कुछ कंपाउंड होते हैं. वो कंपाउंड कुछ कंपाउंड तो उसके बंधे होते हैं मोलिक्यूल से, मतलब उनको मोलिक्यूल दाब देते हैं. जैसे कि एक मोलिक्यूल है, उसको जो सोल्ट के कंपाउंड्स हैं वो इसको चारों साइड से घेर लेंगे और इसको पूरा दबा देंगे. इसको पूरा दबा देंगे. हाइड्रेटेड सोल्ट्स इसी को कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ pitching the molecule or bounding the molecules of salts are known as hydrated salts. अगला आता है हमारा anhydrous substance. anhydrous substance जैसे हम फिल्ट्रेशन करते हैं, जो ये कौन हो गया फिल्टर पेपर, ये बीकर है, इसमें हम पानी डाल लेंगे, पानी आएगा. लास्ट में जो इसमें रेजिड्यू बच गया, उस रेजिड्यू को हम कहते हैं एंटीहोरियस. ANHYDHOURS. उसको हम कहते हैं एनीहोरियस. छोटी क्लासों में उसे रेजिड्यू बोलते हैं, और जब सीनियर क्लास में बच्चे इसको ये बोलते हैं. और इसकी प्रोसेस को पानी डालना, रेजिड्यू इकट्ठा हुआ, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनीहोरियस. और सब्सटेंस, एनीहोरियस सब्सटेंस होता है वो तो पूरा. फिर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आगे. हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक से हम आपको क्या लगेगा कि जो सब्सटेंस है किसी सॉल्यूशन के, वो हमें माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, लेकिन ये गलत है. हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? द सब्सटेंस which takes moisture from their surrounding. From their surrounding. The substance which takes moisture from their substances are known as hygroscopic substances. For example, sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड. इफ यू टेक, अगर हम इसे किसी खुले जगह पे रख देंगे तो ये अपने सराउंडिंग से मॉइस्चर लेगा और ये गायब होता जाएगा आराम आराम से, क्योंकि ये एक हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस है. फिर है हमारा डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस.
डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस, इट मीन्स द सब्सटेंस विच, इसमें तो क्या ले रहा था, मॉइस्चर ले रहा था, और इस डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस वो होते हैं जो अपने सराउंडिंग से लेते हैं वाटर, means which absorb water from their surrounding are known as deliquescent substance. For example, zinc chloride. जिंक क्लोराइड, अगर हम इसे किसी पैकेट में रख के खुला रख देंगे तो इसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होने लगेंगे, क्योंकि इट टेक्स वेपर मीन्स वाटर इन वेपर फॉर्म्स, और फिर वो वेपर्स गर्म होने लगेंगे, गर्म होते ही आराम आराम से पेट्रोल की तरह उड़ने लग जाएगा। फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर करी थी, अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फर्स्ट पॉइंट है एक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स। फॉर एग्जांपल H2O प्लस Mg, वाटर प्लस मैग्नीशियम, क्या प्रेजेंट होगा अगर चलो मैग्नीशियम छोड़ो, आयरन ले लो, Fe नेगेटिव, क्या प्रेजेंट होगा, फर्स्ट रस्ट, और केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, 2HOFe। 2HOFe इसका केमिकल फॉर्मूला आएगा H2O प्लस Fe, रस्ट प्लस 2, ये पहले आना था, मीन्स ये बात एक ही है, क्योंकि रस्ट फॉर्म हो गया। अगर हम वाटर में आयरन को डाल देंगे, आयरन का एक पीस डाल देंगे तो उस पर जंग लग जाएगा, मतलब रस्ट लग जाएगी, और उसमें केमिकल रिएक्शन भी होगा जिसका केमिकल फॉर्मूला बनेगा 2HOFe, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फेरिक ऑक्साइड। फिर है एक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल कोक प्लस स्टीम, steam means H2O in vapors form, goes to, it will boil at 100, I am doing this here, it will boil at, it means goes to, it will boil at the temperature of 100 degree Celsius, the steam, it becomes a steam, और क्या प्रोड्यूस होगा, CO प्लस H2, जिसे हम वाटर गैस बोलते हैं। वाटर गैस, फिर कहेंगे कि वाटर तो ऑर्डरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, टेस्टलेस है, तो इसकी गैस कैसे और इसकी गंध कैसे आती है। अगर हम H2O में प्लस जिंक क्लोराइड मिलाएंगे तो पानी में कुछ अलग तरह की गंध आएगी। वो क्यों आएगी, क्योंकि इसमें वाटर गैस मतलब जिंक क्लोराइड मिलाया गया है। फिर थर्ड प्रोसेस है हमारी एक्शन ऑफ वाटर विद मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड, एग्जांपल लेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, MgO प्लस H2O goes to MgOH। हमने मिलाया मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर, तो क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है। क्या है मेटेलिक ऑक्साइड? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड मीन्स मेटेलिक, इट इज ए मेटल। ऑक्साइड क्या है? मेटल है, और फिर उसके पीछे लग गया ऑक्साइड। फिर आता है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस, हाउ इज हार्डनेस प्रेजेंट इन वाटर? टू टाइप्स ऑफ वाटर आर देयर, हॉट, कोल्ड। इनमें से काम करने के लिए कौन सा अच्छा, मतलब बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए हॉट वाटर, बिकॉज इट फॉर्म्स लेथर्स। लेथर्स मीन्स झाग। झाग ये ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या है? सॉफ्ट वाटर। टू टाइप्स ऑफ वाटर आर देयर, सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट वाटर का एग्जांपल ले लेंगे हम, हॉट वाटर। और कोल्ड वाटर में लेदर्स प्रोड्यूस नहीं होते, क्योंकि उसमें हार्डनेस होती है। क्या? हार्डनेस। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हार्ड वाटर। हार्ड वाटर एंड leathers are not produced easily in the hard water, and in soft water leathers are produced very easily. Two types of hardness are there of water: temporary hardness, temporary hardness and permanent hardness. परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है, हम उसे हटा सकते हैं बॉइलिंग से। हमने ठंडे पानी को गर्म किया, तो वो भी क्या हो गया? सॉफ्ट वाटर। तो वो क्या हुई? टेम्परेरी हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस में ले लिया हमने जिंक क्लोराइड। अगर हम जिंक क्लोराइड को गर्म करेंगे, तो वो सॉफ्ट वाटर में प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि उसमें केमिकल रिएक्शन होगी जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है और हमारी स्किन को हार्म कर सकती है। टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस बाय एडिंग वॉशिंग सोडा कैन बी रिमूव्ड। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा वही होता है जो बेकिंग सोडा होता है, उसके जैसे ही होता है वॉशिंग सोडा। अगर हम ठंडे पानी में वॉशिंग सोडा मिला देंगे, तो ये सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर किस में चेंज हो? ये वॉशिंग सोडा के साथ सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाएंगे। फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। फर्स्ट एडवांटेज है हार्ड वाटर का, dissolved calcium and magnesium salts impart a pleasant taste to water। जो वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम
प्रेजेंट होते हैं वो हमें एक टेस्ट देते हैं। मतलब वैसे तो टेस्ट प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि हम पानी को पिएंगे हमें वो कड़वा मतलब मीठा लगे, और कड़वा पानी जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होते। तो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम, और सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं प्रेजेंट होते। और फिर आता है ये थे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर ओनली, नॉट सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर की कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज क्या है? हार्ड वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज एज इट्स अपसेट्स स्टमक। जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर वो हमारे ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए अच्छा नहीं होता। फिर कहेंगे पहले तो कहा था कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, जो कि हमें एक टेस्ट देते हैं। लेकिन कुछ हार्ड वाटर ऐसे भी होते हैं, मतलब ठंडा पानी, एक गंदा ठंडा पानी होता है जिसमें गंदगी प्रेजेंट होती है, वो हमारे पीने के लिए अच्छा नहीं होता। इट इज अपसेट फॉर ड्रिंकिंग। क्योंकि जैसे कि शादियों में होता है वो पानी, हम खाना खाने के बाद वो पानी पीते हैं, तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं वो हमारे खाने के साथ पानी मिल जाता है, तो उसमें वो कई सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी खाना खाने के बाद, और जब दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं तो हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, और जिससे हमें एसिडिटी जैसी बीमारियां भी हमें हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा, इफ हार्ड वाटर इज यूज्ड इन बॉयलर्स इट कॉज्ड हार्ड डिपॉजिट ऑफ वॉल ऑफ द बॉयलर। बॉयलर, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड बॉयलर? जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी लैब में एक बॉयलर आदमी प्रेजेंट होता है, जो कि हर केमिकल रिएक्शन को करता है। जैसे कि साइंटिस्ट ने दिया जिंक प्लस क्लोराइड, तो वो उसको बर्नर के ऊपर जो गर्म करेगा, जो आदमी बर्न करेगा उसको कहते हम बॉयलर। और हार्ड वाटर को अपनी अगर वो प्रोसेस में यूज करता है, इतना बड़ा धमाका हो सकता है कि जिसकी वजह से वो दीवार भी गिर सकती है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू वी नीड ऑफ वाटर? हमें पानी की क्या जरूरत है? द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग the population of world is increasing and it used water for the various purposes like drinking, agricultural purposes, washing, bathing, etc. Water is used, H2O is used. फिर हमारा आता समथिंग मोर, मतलब कुछ एक्स्ट्रा। लैक ऑफ क्लीन वाटर किल्स लॉट ऑफ चिल्ड्रन एवरी डे। लैक ऑफ वाटर मीन्स लेस वाटर। हमारे भारत में जैसे लोग आधा पानी इस्तेमाल करते हैं और आधा उससे खराब करते हैं, और कई देश ऐसे हैं जहाँ पर वो वाटर के इतने लाले पड़े हुए हैं कि वहाँ पे वाटर मुश्किल से नहीं मिलता, और हजारों बच्चे आज के टाइम में लैक ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी से मरते हैं एक साल में, 1 ईयर। आज के लिए बस वाटर चैप्टर इतना ही हो, आप बाकी मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वेलकम, सब्सक्राइब और चैनल, थैंक यू, कमेंट बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।